aham, and this is known as mam. बड़ा ये तो सबने पढ़ा होगा इतना तो. Aham means I and mam means mera, mine. Vedanta Sutra, Vedant. Ved means knowledge, Ant means the end of knowledge. Remember one thing, knowledge is never the goal. Knowledge is never the goal. Knowledge is every time the means. The goal is happiness. Don't forget this. Knowledge is not the goal. Knowledge is the means. So Vedanta means the end of knowledge. अंत का मतलब नॉलेज कितना चाहिए आपको जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिल जाए. दूसरा मतलब इसका है क्या, इससे आगे जानने की जरूरत ही नहीं है. इससे आगे अगर आपने जानने की कोशिश करी तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ यू गो टू योर ऑफिस, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर. नहीं बोले नहीं यार तुझे तो जिस चेयर पे बैठ रहा है उस चेयर को बनाना भी आना चाहिए कि कभी अगर टूट गई तो चिल्ली बात करते हैं ना ऐसे, कभी अगर टूट गई तो, और कारपेंटर्स की हड़ताल हुई तो ये भी सीख. तो व्हाट विल हैपन? वेस्टेज ऑफ टाइम. सो इन द सेम वे वेदांत एक्चुअली सेज दैट इतना जानने के बाद आगे जानने की जरूरत ही नहीं है. फालतू जानने की कोशिश मत करिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. एक्स्ट्रा नॉलेज बिकम्स अ बर्डन. टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नॉलेज हेल्प्स. इकोनॉमिक्स का थ्योरी भी है, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, द कर्व starts going down, and that happens in life also. And economics, I'm not talking of spiritual knowledge, I'm talking of material knowledge. Economics says till the level of your basic needs is attained, till that point of time you are happy. After that, no. आपका जो बेसिक है ना नीड, वो पूरा होने के बाद जो आप एडिशन करते हैं उसको उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती. यू आर वेरी हंग्री, फर्स्ट रोटी ग्रेट, मजा आ गया. सेकेंड रोटी ओके ग्रेट, थर्ड रोटी, देन व्हाट हैपेंस? ये जरूर है कि आपने इस लेवल पे यूं उठे तो ये फिर लेवल क्या होता है? इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. सो दे आर राइट, दिस लेवल तक तो आ गया. तो हमारे साथ भी यही होता है. इफ यू हैव रेड इकोनॉमिक्स, नेसेसिटी improves productivity. Comfort does not improve productivity to that level, but it helps in improving productivity. Third thing is luxury. Luxury actually reduces productivity. Repeating it. Necessity, basic. So you work, I want to employ you as a software engineer, work. You say, where is the computer? No computer. Without computer you work. So you, come on yaar. The basic necessity, how do I work? On what do I work? ठीक है, टेबल नहीं है, I'll sit down on the floor and work, but at least necessity is what? But a table is comfort. Table will have, नीचे बैठ के भी अगर आदमी if he is so engrossed in his work फिर वो देखता नहीं वो कहाँ बैठा है. परंतु टेबल पे और चेयर पे, कंफर्टेबल चेयर पे बैठने से क्या होता है, उसका लेवल जो है वो बढ़ता है. परंतु लग्जूरियस कर दोगे तो सोने लग जाएगा. A cushioned chair, what will happen? Starts going down. So in the same way, knowledge, whatever we are taking in life, till a particular point of time, till the necessities, very beneficial. Comforts, okay. Luxury, you go down. That's why 99% of the people who are born into rich families very rarely become very great entrepreneurs. ये ध्यान रखना. फर्स्ट जनरेशन जिसने बनाया था वो जो कर गया, बाकी जनरेशन वाले इतने नहीं कर पाते. What Dhirubhai did, Anil and Mukesh have not done. Because the amount of money he has generated in proportion for what he had, this proportion they can never go over that, and their third generation will be much more
लग्जरी होता जा रहा है ना, वो नेसेसिटी में आया था, वो कंफर्ट लेवल में आ गए, और वो बाकी किस में आ रहे हैं, लग्जरी में आ रहे हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट गायब होती है। जब ये हेनरी फोर्ड था, उसके बाद जो उसके फोर्ड्स हुए हैं वो कभी मैनेज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ Henry Ford, his name is Alfred Ford, is actually an initiated disciple of Prabhupada. His name is Amrish Das. They don't manage. Actually, they don't have the, वो कहते हैं ना, drive to manage. Shares हैं, CEO है. They are not the CEO of the company also, but they are managing. They have got the control of the shares. 40 to 50 to 60% shares there. Family holdings are there. परंतु हाँ, so knowledge, Vedanta means the end of knowledge. In the Vedanta Sutra, there is a very nice sutra. There is the first sutra. It says, Aham Brahmasmi. Aham means I, Brahm means Atma, Asmi means हूं. मैं आत्मा हूं. I am the soul. When you say मेरी आत्मा, grammatically wrong. Grammatically wrong. It says अहम, माम ब्रह्मास्मि नहीं कहते, मेरी आत्मा नहीं कहा गया. It is stated I. Who is that I? I is that spirit. I don't have too much time to explain to you, but I'll give you this gist of it. ब्रह्म का मतलब होता है a thing which never diminishes and every time grows. Opposite than what matter is. मैटर का क्या होता है? इट diminishes and it does not stay. And this Brahm means it stays, that means it never diminishes, but simultaneously it grows. The growth is there. Now what is that growth? That are detailed topics. In what type of growth? Does the Atma start becoming bigger? ऐसा नहीं है. Growth of relationship भी तो होती है, नहीं होती? I'll just give you a hint. Two people meet, friends, कॉलेज में मिले और क्या हाल है, फिर हॉस्टल में भी रूममेट्स हुए, तो उससे क्या हुआ? रिलेशनशिप ग्रो हुई रही है. उसका मतलब वो बढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप ग्रो कर रही है? रिलेशनशिप ग्रो कर रही है ना. सो देयर ग्रोथ आर डिफरेंट लेवल्स. डोंट जस्ट से टेक ग्रोथ ऑन वन लेवल, प्लीज. ग्रोथ हैज आल्सो गॉट डिफरेंट कॉनोटेशंस. इट इज नॉट जस्ट ग्रोथ के बड़ा हो रहा है. ग्रोथ इज रिलेशनशिप में भी एक ग्रोथ होती है. ऐसी हेल्थ के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं ग्रोथ को देखने के लिए. तो इसी तरीके से ब्रह्म भी जो ग्रो करता है उसका एक मतलब अलग है. उसका मतलब यह है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में जो देखते हैं डिमिनिशिंग, वो डिमिनिशिंग नहीं है. सो दिस आई, दैट इज द सोल. एंड व्हाट इज द सोल? आई जस्ट टेक अप वन क्वालिटी ऑफ द सोल which has been taken. It is eternal. Eternal simply means not affected by time factor. This world is of how many dimensions? 3. Today science has started agreeing that there are dimensions in this universe. Also there are places which have got 32 dimensions, but they have not seen it, because we will not be able to see it, because our eyes are trained to see. See, try to understand. Sometimes we say यार दिखता क्यों नहीं है? प्रूफ वाली बात करते हैं ना. फिर से दिखता क्यों नहीं है? अरे भाई, तेरे द इंस्ट्रूमेंट्स विच यू हैव, दोज आर नॉट गुड इनफ टू सी दैट डायमेंशन. स्पिरिट इज टोटली अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर, एंड यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू सी इट. यू कैन ट्रेन. लाइक फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल है. ब्लड सैंपल किसी पैथोलॉजिस्ट का भी, टॉप वर्ल्ड पैथोलॉजिस्ट के सामने लाया जाए, कैसे खून देख के बता दे क्या बीमारी है, बता सकेगा? क्या करना पड़ेगा उसको? पुट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. नाउ इफ आई एंड यू गो देयर, मैंने देखा बोलता है भाई टाइफाइड की बैक्टीरियाज हैं, लगता है तुम्हें टाइफाइड है. मैं उनसे कहता हूं मुझे दिखा. आपको वो दिखाएगा, आपको दिख जाएंगे? नहीं. वाई? यू आर नॉट ट्रेन टू सी इट. यू आर नॉट ट्रेन टू सी इट.
Today, just imagine the days when you had not done your computers, you were in the 12th standard or 11th standard. See at that time how you used to look at the computer and see today how you look at the computer. There is a vast change or not? There is a huge change. In the same a person who's not done his MBBS, after he does his MBBS, his way of looking at a person changes. ज़्यादातर वो क्या होगा, यही देखेगा बीमार है कि ठीक है. जब तक अपना लैपटॉप, मेरे दोस्तों कई बार आते हैं, दोस्त मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, जो कंप्यूटर वाले होते हैं उनको कभी नहीं हाथ लगा देता, क्योंकि कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं उसमें से, तो उनको चैन से बैठते नहीं है. उसमें देखा अरे ये गड़बड़ है, प्रभु जी करते हैं साहब. मैंने कहा तू रहने दे, जैसा है मेरा पड़ा रहने दे, मैं तो जानता हूँ तू कुछ कर जाएगा, मेरे पता भी नहीं लगेगा क्या करेगा. बिकॉज देयर माइंड मूव्स इन दैट डायरेक्शन ओनली. उनका शॉर्टकट मेरे लिए लॉन्ग कट हो जाता है. परंतु आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है पूरा. द वे यू लुक एट थिंग्स. सो इन द